Massive fire that had broken out at a game zone in Gujarat's Rajkot. Bodies have been recovered and they've been sent to the hospital for further investigation with regards to this matter. The gaming zone is owned by a person called Yuvraj Singh Solanki. Meanwhile, Parthraj Gohil, the Deputy Commissioner of Police of Rajkot, has stated that they have detained 4 persons associated with the gaming zone. Injured victims are currently being rushed to Rajkot Civil Hospital. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has instructed to carry out immediate rescue and relief operations at the game zone. The state government will provide ₹4 lakh to the families of the deceased and ₹50,000 to the injured. Meanwhile, there are some breaking updates trickling in. 27 people have been killed in this massive fire, including young children. Meanwhile, one person is still missing at the moment. These are the latest updates that we are tracking for all of you viewers with regards to this tragedy. 27 lives have been lost in this tragedy. My colleague Jatin Raval joins us on the broadcast this morning with more details. Jatin, sad incident has taken place yesterday at a gaming zone, a place where people have gone for leisure and recreation. Their lives have now been destroyed. About 27 people have been killed. There seems to be a connectivity issue at Jatin's end. We'll try to get that rectified. Meanwhile, there are condolences that are pouring in from across people across walks of life. In fact, even Prime Minister Narendra Modi has expressed his grief over the incident. He has also had a telephonic conversation, in fact, with Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel with regards to this matter. In fact, he's also tweeted out on his account that the fire tragedy in Rajkot has saddened us all, and he stated that in his telephonic conversation with Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, he's told him, in fact, and briefed him about the efforts underway to ensure all possible assistance is provided to those who have been affected. And this was tweeted sometime around 9:17 p.m. Last evening, shortly when the news had broken out. It seems that Jatin's connection has been rectified now. Jatin, over to you. It seems that the death toll is rising. Last evening we were getting to know that about 24 people had died, and now it's risen to 27. And the Prime Minister has also taken a stock of the situation. ये जो राजकोट के जो टीआरपी जो मॉल है, यहाँ पर जो ये घटना घटित हुई थी, जिसमें तकरीबन 27 लोगों ने जो है इसमें अब तक जो है वो अपनी जान जो है वो गंवाई है। आप देख सकते हैं कि कल देर रात को गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी थे वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। अभी भी आप देख सकते हैं जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, वो यहाँ पर इस ये जो घटनास्थल है जहाँ पर ये 27 लोगों की मौत हुई, यहाँ पर ये जो है गुजरात के मुख्यमंत्री वो भूपेंद्र भाई पटेल अभी उपस्थित हुए। उनके साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी अभी भी है, सांसद है, धारासभ्य यहाँ के जो विधायक है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं जो भूपेंद्र भाई पटेल है वो यहाँ से अब जो निरीक्षण करने के बाद, जो अधिकारियों से जो बातचीत करने के बाद, जो मार्गदर्शन जो देना था वो देने के बाद अब यहाँ से जो है अब थोड़ी देर में जो है वो रवाना हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से वो जो राजकोट जो सिविल अस्पताल है जहां पर 2 लोगों की अभी भी जो गंभीर रूप से जो घायल है उनकी जो सारवार जो है वो चल रही है, और शायद वो वहां जाए। उसके बाद जो वो कलेक्टर कचहरी जाकर जो अधिकारी है अधिकारियों के साथ शायद मीटिंग करे, ऐसी भी बात चल रही है। आप देख सकते हैं जो गुजरात के जो डीजीपी है विकास सहाय वो भी यहाँ पर उपस्थित है। सारी ये जो घटना घटित हुई इसकी अगर जो विस्तार से अगर बात करें तो ये कल शाम का जो बनाव ये जो बना था यहाँ पर जो राजकोट के जो कालावाड़ रोड के ऊपर जो टीआरपी गेम जोन जो आया हुआ है वहां पर तकरीबन 500 से ज्यादा लोग उपस्थित है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां अभी फिलहाल जो है यहाँ पर चल रही है स्कूलों में, उसकी वजह से ज्यादा
भीड़ जो थी वो यहाँ पर इकट्ठा थी। इसके साथ 99 रुपये की स्कीम भी यहाँ पर लागू की गई थी गेम जोन में, जिसकी वजह से काफ़ी भारी मात्रा में जो लोग थे वो यहाँ पर उपस्थित थे। साथ ही साथ मरम्मत का काम जो था वो यहाँ पर चल रहा था और यही गलती जो थी वो यहाँ पर हो गई। जो वेल्डिंग का काम जो चल रहा था उसकी वजह से चिंगारियाँ लगी और यहाँ पर जो फैब्रिक का जो शेड बनाया हुआ था और शेड के अंदर फैब्रिक का मटेरियल यूज़ किया हुआ था, उसकी वजह से जब जो वेल्डिंग की वजह से जब चिंगारियाँ लगी, चिंगारियाँ वायर में लगी, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से जो एसी का जो कंप्रेसर था, कंप्रेसर के अंदर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होते ही तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही पूरी आग जो थी वो पूरे मॉल के अंदर फैल गई। तकरीबन 31 जितने लोग इसमें गुम हो गए थे, जिसमें 27 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। 2 लोग अभी राजकोट के सिविल अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है। साथ ही एक व्यक्ति जो है वो राजकोट के एम्स अस्पताल के अंदर जो है वो अभी उनकी सारवार जो है वो चल रही है। एक व्यक्ति की अभी भी जो तपास है वो जिस तरह से आपने देखा कि अभी भी जो यहाँ पर जो कचरा है उसको, जो शेड का जो मटेरियल है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है और हटाने के बाद जो है हो सकता है कि वो एक जो डेड बॉडी है हो सकता है वो कहीं चला भी गया हो, यहाँ से निकल भी गया हो, ऐसी भी आशाएं जो है वो पुलिस के द्वारा जताई गई। क्योंकि रात को ही सारा जो ये जो शेड था वो उसको हटा लिया गया था और वहाँ पर जांच की गई थी, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी अभी भी जो ये जांच जो है वो अभी भी चालू है हो। लेकिन गंभीर बात ये है कि ऐसा पहली बार ये वाकया जो है वो यहाँ पर गुजरात के अंदर नहीं हुआ है। ऐसा पहले सूरत की तक्षशिला में भी ऐसी घटना जो थी वो घटित हुई। उसके बाद अगर बात करें, जैसे आपने देखा मोरबी का जो पुल का जो दुर्घटना कांड हुआ, जिसमें भी काफी मासूम लोगों ने जो है वो अपनी जान गंवाई। उसके बाद भी जो है वो तंत्र सजाग नहीं हुआ और बड़ौदा के अंदर जो है वो हरनी बोट का जो दुर्घटना जो कांड था वो हुआ। उसके बाद ये जो यहाँ पर जो राजकोट अंदर जो टीआरपी गेम जोन है यहाँ पर ये घटना जो है वो घटित हुई। तब अब ये सवाल जब ये खड़ा होता है कि कब ये कि सरकार जो है ये अधिकारियों के खिलाफ जो है वो ठोस कदम उठाएगी। क्योंकि पहले भी अगर बात करें जो जैसे हरनी जो बड़ौदा का जो मामला था दुर्घटना, उसमें सारे आरोपी जो है वो जामीन मुक्त है। अगर बात करें जो मोरबी पुल दुर्घटना कांड का, उसके भी आरोपी जो है वो अभी जामीन पर मुक्त है। यानी कि सभी लोगों के खिलाफ जो है वो सरकार उस समय भी एसआईटी बिठाई गई थी। हालांकि इस बार भी एसआईटी बिठाई है, 10 के दिन के अंदर एसआईटी का रिपोर्ट जो है वो सुपुर्द करने के लिए जो है वो कहा गया है। साथ ही ये एसआईटी की समिति की जो गठन किया गया है, इसका इंचार्ज जो है वो सुभाष त्रिवेदी जी को जो है वो बनाया गया है और इनको ये भी बोला गया है कि 10 दिन के अंदर जो है ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे। 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट एसआईटी को सबमिट करनी होगी, पूरी जांच करने के बाद कि किस तरह से ये आग जो है वो फैल गई, कहां से आग लगी। जिस तरह, लेकिन मैंने आपको बताया कि आग जो थी वो वेल्डिंग की वजह से आग लगी थी, लेकिन और भी काफी सारी लापरवाही जो है वो यहाँ पर पाई गई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.